اندھیرا رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بڑھ جاتا ہے۔ اندھیرا دکھ کا ہمجولی، ایسا اندھیرا پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ناک سے بہنے والا خون تھک کر رک چکا تھا۔ اس نے اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ ٹیشو ہی ناک پر رکھ لیتا۔ در پردہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا جس میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ کرسی پر وہ چپ بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں تھے، کمرہ اندھیرے میں اور وہ خود گمشدہ۔ سائی اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا، بس ایسا تھا کہ وہ سن نہیں رہا تھا۔ سائی کو سادھنا نے فون کیا تھا اور وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ کارل موجود نہیں تھا۔ جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلب چلا گیا تھا اور یقیناً پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہوگا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا، اور جب اس نے فون اٹھا لیا تو آنے میں اسے ذرا وقت نہ لگا۔ سائی نے مختصراً اسے سب بتایا اور کمرہ کھول کر کارل سائی کو باہر ہی چھوڑ کر آلیان کے پاس آ گیا۔ کارل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو آلیان کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر کارل کو دیکھا تو کارل کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل رک کر پھر چلا۔ آلیان، اس نے اس کے زخم خوردہ گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو ہو گئیں۔ جب اس پر پہلی بار یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد اب اس نے زندگی میں جس پہلے انسان کے ساتھ محبت کی تھی وہ آلیان تھا، اور جس کے لیے وہ آگ میں بھی کود سکتا تھا وہ بھی آلیان ہی تھا۔ اس نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس نے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھو لیا۔ ان ہاتھوں میں زندگی کی بوجھل تپش بھی ناپید تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی دونگلیوں کے ناخن جڑ سے اکھڑے ہوئے تھے، اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا۔ اس میں سہن زیادہ تھی یا فراموشی؟ تم کب بڑے ہو گئے آلیان؟ اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مسلے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کی وارڈروب تک آیا اور نچلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر روئی سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لوتھڑے جمے تھے، انہیں اس نے نرمی سے صاف کیا، اور پھر ان ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا سے جڑ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، کٹر سے کاٹا اور آلیان نے سی بھی نہ کی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے راستہ بنا کر مجھ تک آتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کارل کا شمار بھی بد نصیبوں میں ہوتا اگر اس کے پاس آلیان نہ ہوتا۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تو اپنے فائدے کے لیے۔ کارل میرا باپ، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں اس کے بغیر کیسے رہا، اتنے سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارے، میری ماں کب اور کیسے مر گئی، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کتنی تکلیف میں رہی، اس پر کیا کیا بیتی، کوئی ایک بھی بات اس نے نہیں پوچھی۔ آلیان نے بولنا شروع کر دیا اور کارل نے خود کو کئی راتوں اور کئی دنوں تک سننے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے آلیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور وہ انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دوسری طرف امرہ سائی کے سامنے کھڑی تھی، دونوں ہال کے بیرونی گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، سائی نے قدر سختی سے کہا، ایسی سختی جو اس کے مزاج کا خاصہ نہیں تھی۔ وہ غصے میں نہیں، تکلیف میں ہے سائی، میں نے سب نیک نیتی سے کیا، میرا یقین کرو۔ نہیں، تم نے نیک نیتی سے نہیں، سنگ دلی سے کیا، اپنے لیے کیا امرہ، تمہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا، تمہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا تھا وہ جائز ہے یا ناجائز، تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا اس کے خاندانی ہونے کا۔ تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو نا امرہ، تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں منع کر دیتا،
अमरहा, इतनी सीधी सी बात तुम नहीं समझ सकी कि खानदान लापता नहीं हुआ करते, वो खुद को लापता कर लेते हैं। अगर कोई उसका बाप था तो वो अब तक कहाँ था? उसने बेसहारा बच्चों के इदारे में परवरिश क्यों पाई? एक दूसरी खातून ने उसकी माँ होने का फरीजा क्यों अदा किया और उसी खातून ने उसके बाप को उसके बारे में क्यों नहीं बताया? वो इसी हालत से डरती थी जिस हालत में अब आलियान है। तुम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करती तो सब समझ जाती। अमरहा की आंखों ने उसकी जात के अंदर की वीरानियां बहुत तफसील से देखी। मैं उससे मोहब्बत करती थी, उसके लिए हर हद से गुजर गई, हर हद से। हाँ, तुम गुजर गई और देखो उसे कितनी तकलीफ हुई। क्या कभी तुम्हें आलियान ने कोई तकलीफ दी? अमरहा, पहले तुम खुद ये फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। जब उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन इस मोहब्बत को अपना सकती हो ना उसका ऐलान कर सकती हो। तुम्हें उससे अलग रहना है। फिर तुमने कहा कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती और तुम अपने घर वालों से बात करना चाहती हो। मैंने दादा से बात की थी। उसकी रूह ने उसके जिस्म को अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। अमरहा, एक सीधी सी बात है, वो जहाँ है जैसा है तुम्हें उसे ऐसे ही कबूल करना है। तुम उसके माशरती रुतबे को बदल कर उसे नहीं अपना सकती, ये मुनाफकत होगी। तुम ऐसे उसका हिसाब किताब नहीं कर सकती। ये कोई खेल नहीं है कि जब तुम खेल सको तो ठीक, वरना तुम छोड़कर चली जाओ कि तुम नहीं जीत सकती और जाते जाते तुम उसे हरा जाओ। कभी गौर किया है अमरहा कि तुमने उस शख्स का क्या हाल कर दिया है? तुमसे पहले वो और कार सबका नाक में दम किए रखते थे। पढ़ने के अलावा जो उन्हें दूसरा काम होता था वो शरारतें था। यहाँ से जाने वाला हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को भूल सकता है, लेकिन उन दोनों को नहीं। उसकी एक जिंदगी थी, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई, और तुमने ये खुद कबूल किया था कि तुम जानती थी कि वो तुम्हें किस कदर पसंद कर रहा है और तुमने ये होने दिया। तुम क्या इख्तिताम चाहती हो अब इस सारे किस्से का? अमरहा के सब ठीक हो जाए? तुम अमरहा पहले खुद को ठीक करो, फैसला करो और खुद को सुनाओ। साई जरा देर के लिए रुका, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि फिलहाल आलियान से दूर रहो। अमरहा ने गीली हो चुकी दिल की धरती से आंखें उठाकर साई को देखा। हर तरफ से उसे दूर रहने के फैसले सुनाए जा रहे थे। उसके फादर उसे पहले से ही ढूंढ रहे थे। हाँ, मैं जानता हूँ, लेडी महर ने मुझे बता दिया था सब। जब इतने अरसे तक वो उन्हें आलियान से दूर रखती रही तो तुमने ये कामयाबी उन्हें क्यों हासिल करने दी? तुम्हें लगा कि वो आलियान के साथ ठीक नहीं कर रही, उसे उसके बाप से मिलने नहीं दे रही। हाँ, उसने सच बोला। जब तुमने मुझे बताया तो मैंने दुआ की कि ये हरकत तुम्हारे हक में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमरहा, हम में से कौन है जो तुम्हारा बुरा सोचता है? तुम्हें हमारी कोई एक बात तो माननी चाहिए थी। साई कितना ठीक कह रहा था। उसने उसे मशवरा दिया था कि वो दादा के पास चली जाए और उन्हें समझाए, लेकिन उसे ये खौफ था कि दादा उसे वापस से नहीं आने देंगे। पहली बार मुझे दुख हुआ अमरहा कि मैं एक सख्त दिल इंसान का दोस्त हूँ। उसके जुदा होने के ख्याल से मेरा दिल सख्त हो गया। उसने अपना जुर्म मान लिया। उसने खुद को वीरा के करीब हो जाने दिया। ये वो दुख जो उसे सारी जिंदगी नहीं भूलने वाला था, जो उसकी आखिरी सांस तक उसे बंजर किए रखने वाला था। तुमने उसे दूर क्यों हो जाने दिया? उसकी मोहब्बत मेरे लिए इतनी जल्दी खत्म हो गई। अब तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए एकदम से इतनी जाग उठी कि तुम ये सब कर गुजरी, या तुम्हें ये सोचकर सुकून मिलता रहा कि वो मोहब्बत तो तुमसे ही करता है ना, और तुम्हें ये दुख हुआ कि वो किसी और की तरफ क्यों मतवज्जा हुआ? उसे तुम्हारे पीछे ही रहना चाहिए था और फिर जो चाहे तुम उसके साथ करती। वीरा ने खुद उसे प्रपोज किया, उसने उसे बढ़ावा नहीं दिया था। वो उसका दोस्त था। अगर मोहब्बत को एक तरफ रख दिया जाए तो अमरहा और वीरा में से आलियान के लिए बेहतर कौन है? मैं चाहूंगा तुम इस बारे में भी सोचो। अमरहा ने सियाह बुतलियां गैर मरी नुक्ते से हटाकर साई की तरफ देखा और देखती ही रही। वीरा,
उसे कुछ वक्त लगा ये नाम बड़बड़ाने में। हाँ, अगर मोहब्बत को एक तरफ रख दिया जाए तो अमरहा में क्या है? उसने खुद से सवाल किया, कितनी ही अमरहा होंगी दुनिया में, लेकिन कितने बहुत से आलिया नहीं होंगी। पॉल के हमले के बारे में जब हमारे हॉलमेट ने बताया तो हम सब पेट पर हाथ रखे शाहवेज और कार्ल के थिएटर पर हंस रहे थे, और उसी वक्त उसकी हंसी ऐसे रुक गई जैसे दोबारा वो कभी हंस नहीं सकेगा। वो सारी रात नहीं सो सका अमरहा। जे पैटरसन ने 3 लोगों की ड्यूटियां नहीं लगाई थी, उसने लगाई थी। वो कार्ल और वीरा कितनी ही रातें तुम्हें खामोशी से घर तक बाहिफाजत छोड़कर आते रहे। उन्होंने जाहिर करके तुम पर एहसान नहीं जताया। तुम्हारी हिम्मत, बहादुरी, हिकमत को उन्होंने सिर्फ तुम्हारा ही रहने दिया। तुम्हें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। तुम्हें उनके माजी के बदनुमा दागों की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो जहाँ हैं, जैसे हैं, तुम्हें कबूल करना चाहिए। अमरहा, हम सब ने हॉट रॉक में चलने वाली रिकॉर्डिंग सुनी और कभी ये जाहिर नहीं किया कि हमने कुछ सुना है। और तुमने अब तक क्या किया? दुआएं, बस दुआएं। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा। उससे मेरे आने के बारे में मत बताना साई। अमरहा ने खुद को मस्मार करने का फैसला कर लिया। मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन तुम अभी घर जाओ। मेरा लहजा और अंदाज बुरे हो सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। मैं जानती हूँ साई, लेकिन मेरे आने के बारे में तुम उसे ना बताना। मेरे दादा कभी नहीं मानेंगे, और अब तो आलियान भी नहीं मानेगा। मैं उसके लिए कोई भी नहीं रही अब, और वो अपनी जगह ठीक है, और वो पहले भी गलत नहीं था। मैं चाहता हूँ तुम पर सुकून रहो। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन चाहने से सब कहाँ होता है। तुम घर जाओ, आराम करो। हाँ, मुझे आराम करने की ही राहें ढूंढनी पड़ेंगी अब। वो घर आई तो पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी, और अंदर ऑफिसर लेडी महर के पास बैठा कुछ लिख रहा था। आलियान का बाप आया था अमरहा। साधना उसके करीब आई। दोनों में बहुत देर बातचीत होती रही। फिर पुलिस बुलवानी पड़ी। साधना उसकी शक्ल पर कुछ खोज रही थी। तुमने ठीक नहीं किया अमरहा, उसने गहरा सांस भरकर कहा। अमरहा के पछतावे पर यह बात आखिरी सिल बनकर गिरी, और अमरहा पूरी की पूरी दफन हो गई। लेडी महर ने बहुत सर्द नजरों से अमरहा को देखा, और जो थोड़ी बहुत कुव्वत अमरहा में बची थी वो भी जाती रही। उसका जी चाहा दीवार पर टंगी बंदूक उतार कर उसमें कारतूस भर कर अपनी खोपड़ी उड़ा दे, और बस फिर सब ठीक। एक लड़की है अमरहा, कश्मीर की सब्जाजार सी, परिस्तान के गुलाब सी, जमरूद जुड़े अतरदान सी। वो कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई, फिर उठ गई। वो इतनी पत्थर जगह पर नहीं बैठ सकी। फिर वो कुर्सी पर बैठी और उसे एक तकलीफ को महसूस करते उठ खड़ी हुई। उसने वॉशरूम में बहुत देर मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसके गाल की सुर्खी फिर भी मध्यम न हुई। तकलीफ रिंगती गाल से सारे जिस्म में फैलती रही। वो कमरे में जगह बदल बदल कर बैठने लगी, और आखिरी वक्त में वो कुर्सी के पीछे नीचे कोने में खुद को महफूज समझने लगी। उसकी कैफियत में कोई सौदाई हलूल कर गया, और उसकी होशमंदी को कोई वहशी ले उड़ा। उसने सर अपने घुटनों में ले लिया। उसे बहुत देर तक अपने जिंदा रह जाने के ख्याल से खौफ आया। उसकी जिंदगी कहीं बहुत लंबी ना हो जाए। उस पर यह ख्याल तौबा के रद्द किए जाने के खौफ सा गुजरा। तुम कितनी जालिम हो अमरहा। हाँ, मैं बहुत जालिम हूँ। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अब ठीक ठीक खुद को पहचान लिया है। जमीन का वो कोना, मशरिक, उसकी मिट्टी की जरखेजी में ही बंजरपन की गांठें गुंदी हैं। मशरिक का ये कोना अमरहा, उसकी जरखेज जड़ों में गुंदी गांठें खुलने लगी, और उस पर उसका बस न चला, और वो उस बस न चल सकने पर फूट फूट कर रोने लगी। कई घंटे ऐसे ही गुजर गए। रात ने अपना सफर नातमाम करने की कसम उठा ली, और कसम न टूटने का अहद बांध लिया। सारी नज़ाकतें उसके अंदर दम तोड़ने लगी, और सारे अरमान खुद को दफनाने लगे। वो रोती रही, और प्रेम रोगी जड़ें उसमें जगल बयाबां आबाद करने लगी। मेज पर रखा उसका फोन कब से बज रहा था। रात के 3 बजे थे। फोन बहुत देर तक वक्फे वक्फे से बजता रहा।
अमरहा, तुम्हारे दादा का फोन है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? वो बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत देर तक उसका दरवाजा बजाने के बाद साधना तेज आवाज में चिल्लाने लगी। वो कह रही हैं उन्हें तुमसे बात करनी है। वो बहुत घबराए हुए हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। अमरहा कहाँ हो? अमरहा, दरवाजा खोलो। अपना मुंह साफ करके अमरहा ने जरा सा दरवाजा खोलकर ये कहना चाहा कि उनसे कह दे कि वो सो रही है और कल दिन में बात करेगी, लेकिन साधना के हाथ में लैपटॉप और दादा सामने ही थे। दादा ने उसे देखा और जैसे किसी खदशे की तस्दीक हो गई। वो उससे नाराज थे और कितने ही दिनों से उससे बात नहीं कर रहे थे। आज उन्हें किसी पल चैन नहीं आ रहा था। उनकी आंखों से आंसू अपने आप गिर रहे थे। अमरहा, वो उसका नाम लेकर आगे बोलना ही भूल गए। साधना लैपटॉप को मेज पर रखकर बहुत दुख से अमरहा को देखती हुई चली गई। तुम ठीक हो? दादा को नजर आ गया था, फिर भी पूछा। बिल्कुल, उसने अपनी आंखें साफ की। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? और तुम्हारा चेहरा ठीक तो है सब? कहकर वो जैसे मुस्कुराई, दादा पर बिजली सी गिरी। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, दादा ने हिम्मत करके कह दिया। क्यों? अब आपको ठीक क्यों नहीं लग रहा? अभी तो सब ठीक हुआ है। मैंने आपके लिए सब ठीक कर दिया है। अब आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। तुम नाराज हो मुझसे? उसकी हालत के मुकाबले में ये सवाल उन्हें बहुत बोधा लगा। नहीं, नाराज तो आप मुझसे हो सकते हैं, मैं नहीं। ये हक मुझे कहाँ दिया गया है? तुम तंज कर रही हो मुझ पर। ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें क्या हुआ है अमरहा? मुझे बताओ। मैं सोते से उठ बैठा। मैंने साधना की मन्नत की वो बस मुझे तुम्हें दिखा दे। मेरा दिल बंद हो जाने को हुआ। आपको मालूम है दिल बंद हो जाना किसे कहते हैं? आंसू आंखों से टप टप गिरने लगे। अमरहा, दादा कांप से गए। मुझे मालूम करना है दादा, दिल बंद होना किसे कहते हैं? आपको बताना ही पड़ेगा मुझे। जब जब जान से प्यारा कोई तकलीफ में हो मेरी बच्ची, दादा को बोलना पड़ा। और जान से प्यारा कौन होता है? तुम हो मुझे जान से प्यारी, तुम। उनकी अपनी आवाज कांप कर रह गई। दादा, दिल तब बंद नहीं होता जब जान से प्यारा तकलीफ में होता है। ये दिल तब बंद होने लगता है जब कोई जान से प्यारा जान छुड़ा लेता है, जब वो खुद से दूर कर देता है, जब वो मुंह पर थप्पड़ मार देता है, और जब वो कहता है जाओ, आज से तुम मेरे लिए मर गई। उसकी कई घंटों तक रो चुकी आंखों ने फिर से खुद को आंसुओं के हवाले कर दिया। अमरहा, दादा इतना ही बोल पाए। और जानना चाहेंगे क्या होता है? जब वो ये कह देता है तो मर जाने को दिल चाहता है। दिल चाहता है हलक में हाथ डालकर सांसें खींच लें और जिंदगी से जुड़ा उनका ताल्लुक काट डालें, जिस्म चीर कर दिल बाहर निकाल फेंकें और रगों को छेद कर उनमें दौड़ता खून बाहर डालें। अमरहा, क्या करने जा रही हो तुम? दादा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी और अपने बेड पर बैठे रहना उनसे मुश्किल हो गया। सुने दादा, सब सुने, अब मैं आपको सब बताती हूँ। लैपटॉप मेज पर रखा और वो सामने नीचे आलती पालती जमा कर बैठी थी। उसने अपनी नाक रगड़ी और एक गहरा सांस लिया। इंसानों के हजूम में मुझे एक इंसान मिला। एक इंसान दादा। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? जिसकी आंखों में एहतराम हो, अल्फाज में नरमी, जिसकी अखलाक में रहमदिली हो और मकासद में आला ज़र्फ़ी, जो साथ हो तो शान हो वरना सब गुमान हो। ऐसा इंसान जो बोलता है तो जख्मों पर मरहम रखता है और ना बोले तो जख्म हरे नहीं करता, जो एहसासात पर कमंदे नहीं डालता बल्कि उन पर फवार बनकर बरसता है। वो इंसान दादा। मुझे हमेशा अपनी किस्मत पर शक रहा था और ये शक उस इंसान के मिलने से रश्क हो गया। कभी मिले हैं आप ऐसे इंसान से? उसने कभी मेरे बारे में कोई सवाल नहीं किया, और सवाल किया भी तो इतना, मुझसे शादी करोगी? अमरहा, चुप हो जाओ, मैंने कहा ना। उसकी कैफियत में कोई सदाई हलूल कर चुका था। उस सदाई से दादा को खौफ आ रहा था। क्यों चुप हो जाऊं अब मैं? वो रो कर ही बोली,
मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे अंदाज पर। आपको सिर्फ मुझे देखकर तकलीफ हो रही है, सिर्फ देखकर। खुशकिस्मत हैं आप अमरहा नहीं हैं। क्या हुआ है? तुम क्या करने जा रही हो? डरे मत, मैं मरने नहीं जा रही, इसकी नौबत नहीं आएगी। उसने जब कहा तुम मेरे लिए मर चुकी हो, ये काम तभी हो गया था। अमरहा, मेरी बात सुनो खुदा के लिए। आप चुप करके मुझे सुने, खुदा के लिए। आपको ये शिकवा नहीं होना चाहिए कि आपसे सब कहा नहीं गया। वो ऐलान सुने जो मुझे बुलंदी पर चढ़कर करना था। कुल आलम को इकट्ठा करके अब सिर्फ एक आपके सामने करती हूँ। खुश्क होंठों को उसने ज़बान से गिला किया, जैसे उसे ये गवारा नहीं था कि वो उस हालत में उसका नाम ले। मुझे इंसानों से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे क्या पता था इंसानों में कोई आलियान भी है। दादा ने अपने लब भींच लिए। हम मशरकी लोग बहुत अजीब होते हैं दादा। बेटियों की रुखसती के ख्याल से ही घंटों रोते रहते हैं और उनके दिल के अरमानों की रुखसती पर एक आंसू नहीं बहाते। हमें ये मान रहता है कि हमारी औलाद हमारा सर नीचा नहीं करती, और हम ये गरूर हासिल नहीं कर पाते कि हमने औलाद की खुशियों को नीचा होने नहीं दिया। दादा, हमारे सरों पर खानदान की इज्जत की पगड़ियां सजाई जाती हैं और हमारे दिल के तख्त सूने रह जाते हैं और कोई उन पर आह भी नहीं भरता। मशरकी औरत इर्तिका का जरिया क्यों है, खुद इर्तिका क्यों नहीं? ये सवाल मैंने खुद से कई बार पूछा और खुद को ये भी बताते पाया कि मशरकी एक गंजलक खित्ता है, फलसफियों के उन फलसफों से भरा हुआ जिनके पैंदे में तासुब होता है और किनारे पर मुनाफकत। आप भी वही मशरकी फलसफी निकले। मैंने आपसे उसकी बात की और आपने मुझे चुप हो जाने के लिए कहा। ये चुप का ताला, उसकी चाबी कहाँ गुम रहती है? कभी तो इस ताले को खुलने की इजाज़त दें। हमारे यहाँ की हुक्म की पनारियों के गुलाम जिन बेनों पर नाचते हैं, उन बेनों को कभी तोड़ा जाए। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके खित्ते के किस हकीम के पास जाऊं कि वो मेरे दर्द को ठीक कर दे, मेरे जख्म पर मरहम रखे, पर मेरे तो जिस्म पर कोई चोट ही नहीं। मुझे किसी बुजुर्ग से दम करवाना चाहिए कि अब आंखें बंद करने पर मुझे नींद आ जाया करे और मुंह खोलने पर सांस। मुंह खोलकर उसने सांस लेना चाहा। एक बात आप ही मुझे सिखाकर भूल गए। जब मैंने अपने कॉलेज की दोस्त छोड़ दी थी, आपने कहा था कीमती इंसान रूठ जाए तो तुम्हें अपने नुकसान पर पशेमानी से रोना चाहिए। चीज़ों से लापरवाही बरतो और उन्हें गुम कर दो। कीमती इंसान की परवाह करो और उन्हें गुम ना होने दो। इतना कहते कहते वो बैठे बैठे अमरहा से बर्जन बन गई। जवानी किस्सा पारीना हो गई। दादा, कीमती इंसान से आपका मतलब हसब नसब वाला कीमती इंसान होगा और बाकी सब बेकार है ना? मैंने आपसे कहा था मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मुझे आगे जिंदगी नजर नहीं आ रही। और किस तरह कहती दादा कि आप समझ जाते। एक इंसान आपके सामने अपने खत्म होने की निशानियां बयान करता है और आप कहते हैं आपकी समात पर गरा गुजर रहा है। वो रोकर हंसकर फिर रो दी। मैं यहाँ आ रही थी तो आपने कहा हिम्मत से काम लेना, हर मुश्किल का मर्दाना वार मुकाबला करना, और इस जुदाई का इसका मुकाबला मैंने सिकंदराना भी किया तो भी शिकस्त मेरा ही मुकद्दर होगी। मैं ख़त्म होना शुरू हो गई हूँ और इस अमल की तकमील में बहुत वक्त नहीं लगेगा। आप दादा, उसने आह भरी, आप चाहते थे मैं आपके सामने डर जाऊं या आप चाहते थे मैं दो में से एक का इंतखाब कर लूं? तो दादा, मैंने आपका इंतखाब कर लिया। मैं डर सकती थी, अकेले ही फैसला करके आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मैंने आपके मान सम्मान को गिरने नहीं दिया। मैंने अपने साथ बुरा कर लिया, लेकिन आपके साथ बुरा होने नहीं दिया। आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं भी, वो भी। हम तीन अच्छे इंसान एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हो सके। उसकी भीगी आवाज़ खुशतर हो गई थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अपना दिल निकाल कर मैं आपको दे दूँ या उसे कहीं बाहर फेंक दूँ, क्योंकि मुझे अब जिंदा रखने के बजाय ये मार डालेगा।
अमरहा तुम क्या करने जा रही हो? डरे नहीं दादा, मैं खुदकुशी नहीं करूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे तबई मौत मरने में वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी हालत पर रहम करो अमरहा। दादा ने हाथ जोड़ दिए। आपने मेरी हालत पर रहम किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। कितनी मामूली वजह थी जिस पर मैं पहले खुदकुशी कर चुकी हूँ, और अब मेरे हाथ में वो मामूली वजह भी नहीं रही जो मुझे जिंदा रखे। साधना अमरहा के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी जो वो लॉक कर चुकी थी। साधना के हाथ में फ़ोन था और फ़ोन पर दादा थे जो साधना की मिन्नत कर रहे थे कि वो अंदर उसके पास जाए, उसके पास जो आलती पालती मारे किसी परछाई की तरह अपने आप बोलती बोलती जा रही थी। एक लड़की है अमरहा, नाफरमान की बद्दुआ सी, साहिर के जलाल सी और मौत के इल्हाम सी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।